The topic of webinar is personality development. Ma'am Habiba has done Masters in Business Administration and BBA in Business Administration with excellent result. She has gained many achievements in her career in the field of human resource management. She has gained experience in the area of market research. She is now working as a training officer in Allied Bank Limited. We are very thankful as she has given us her precious time. So I will invite her to let us know about personality development. Assalamu alaikum everyone. Can you all see me? Can you all hear me? Am I audible to everyone? Rimsha, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Assalamu alaikum, Ms. Biba. Yes, Walaikum salam. we can hear you. Welcome. Thank you so much. Thank you. Asaji, first of all, thank you all of you for inviting me for this guest speaker session. Thank you, Rimshad. Thank you, Dr. Afshin Fatma. It's a great honor. And I'm always actually very fond of talking to graduating students because 4 or 5 years back when I was graduating, I needed some mentorship. I needed some guidance. So I'm glad that you have invited me for this. Achha, I have a small request that all of you who could switch on your cameras, I would highly appreciate that. Otherwise, I would just keep on feeling कि मैं अपने laptop से बातें कर रही हूँ. So, is it possible कि आप में से at least 3-4 लोग अपने cameras on कर सकें? And it's completely fine. I don't care. आप लोग बेशक अपने घर पे बैठे होंगे, कोई मसला नहीं. I understand. We have been there जहाँ हम अपने online sessions लेते थे. So it's okay if you're not really in a presentable manner. इतने presentable नहीं भी हैं तो भी चलेगा. So yes, if 2 or 3 of even 4 of you could switch on your cameras. Thank you, sir. हबीबा, मैंने आपको ज्वाइन कर ली है और मैं साथ भी आ गया. बाकी भी अगर कोई आना चाहे तो वो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं. Perfect, perfect. अच्छा जी, चले. आई कैन सी कि इतने विलिंग नहीं है आप लोग अपने कैमरास ऑन करने के लिए, but let's make sure that this is an interactive session. This stays as an interactive session. मेरा ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो रिमशा करा चुकी हैं. थोड़ा बहुत मैं खुद भी करा देती हूँ. That currently I'm working as officer training here at Allied Bank. इससे पहले जो है मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में काम करती रही हूँ. So you're all HR students. My understanding is that you're all HR students. So उसमें ये है that previously जिस तरह का मेरी एक्सपीरियंस रह चुका है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का है, और करंटली जो है उसमें हम सब देखते हैं कि जब आपने किसी एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड लेना है या आप इस एम्प्लॉय को फील्ड में भेज रहे हैं तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. So इन सब चीज़ों को लेकर I feel that this webinar is extremely important for you. अगर हम देखें ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक को, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक. योर पर्सनालिटी स्टार्ट्स डेवलपिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. आपके पेरेंट्स जिस तरह से आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपका एनवायरनमेंट जिस तरह का होता है, आपके जो सोसाइटल वेरिएबल्स हैं, दे ऑल मेक अप योर पर्सनालिटी. बट द पॉइंट इज कि इस एरिया में अभी हम सिर्फ उस वाली चीज़ों को फोकस करने वाले हैं जो आपको ज़रूरी हैं अपनी पर्सनालिटी में when you go into the work field. So अगर आप लोग graduating batch हैं, so I'm hoping that you all will be graduating in a month or so. और फिर उसके बाद you will be looking for jobs, you will be looking for experience in the work field. ठीक है. So इससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो होगा. और दूसरी बात ये कि हम कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें एज पर द वर्कफोर्स नीड. ठीक हो गया. अच्छा जी. सो पहले तो हम देख लेते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है. ठीक है. इज देयर एनीवन हु कुड आंसर दिस and not the Google definition? Somebody who could just tell me कि personality होती क्या है. Development की बात तो बाद में आती है. पहले we need to see कि personality in itself चीज क्या है. What makes your personality?
Do we have anybody here who could answer this? Rimsha? Ma'am, I think our behavior Hmm. comes in our personality. Hmm. It is Extremely essential part. Yes, yes. So thank you Rimsha for adding your input to this. जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं, जिस तरह से आप फील कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल दैट मेक्स योर पर्सनालिटी. ठीक है. सो अब होता ये है कि कोई भी एक सिचुएशन हम ले लेते हैं और उस सिचुएशन को लेकर जिस तरह से आपने अपना माइंड बना लिया है, यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन दैट सर्टेन वे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से आपका बिहेवियर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है उसके साथ साथ. ठीक हो गया. सो बाय दिस एज एक तरह की पर्सनालिटी होगी. यहाँ पे हमारे पास 21 पार्टिसिपेंट्स हैं. ठीक है. और हम सब एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ बैठे हुए हैं बिकॉज वी हैव ऑल हैड आवर ओन एक्सपीरियंसेस. हमारा अपना बैकग्राउंड था, एक अपना तरीका था चीजों का. हमने डिफरेंट चीजें देखी हैं, डिफरेंट लोगों से मिले हैं. सो दे ऑल एड अप टू यू बीइंग दिस पर्सन. अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल जो मेरा बनता है वो यही है. अगेन मैं रिमशा को ही कहूंगी, अगर कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, हाउ डू यू यूजुअली सी इट? डू यू सी इट एज अ प्रॉब्लम और डू यू थिंक ऑफ इट एज अ चैलेंज? I will think it as a challenge. ठीक है. और and I will think how to overcome that problem. Exactly. ठीक है. as a challenge. बिल्कुल सही है. अच्छा, लेकिन जब रिमशा हम लोग लेक्चर से बात करते हैं चैलेंज की, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम की, लेक्चर से प्रॉब्लम का वर्ड आपके दिमाग में आ गया, उसके साथ ही किस तरह का थॉट प्रोसेस है जो जनरेट होना शुरू हो जाता है आपके दिमाग में? एक प्रॉब्लम का लफ्ज आया और साथ में आप क्या सोचना शुरू कर देंगे? Do you see problem as how to find us how to find solution to cope with that problem? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बट प्रॉब्लम जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ आती है. ऑन द अदर हैंड चैलेंज एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आता है. तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे आपका बिहेवियर, जो आपका रिस्पॉन्स है, वो एक सोल्यूशन ढूंढना ही हो, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी का आपका एक ओवरऑल पार्ट है वो यही है कि आपने जिस टाइम पे उस प्रॉब्लम को देखा है तो आपने नेगेटिव तरीके से देखा है. However, if you take the same situation as a challenge, you would find solutions and you would have a very positive mindset about that certain challenge. ठीक है. So ये वो एक आपका mindset है, आपका एक behavior है, आपकी जो thinking से लेके feelings से लेके behavior तक का एक process है, वो इन सब चीजों में आ जाता है. अच्छा जी. So let's talk about workplace. So जिस तरह से मैंने पहले आपसे कहा कि I have worked in the recruitment and selection and now I'm working in the training department. So जिस टाइम पे हम recruitment कर रहे होते थे या जिस टाइम पे हम लोग स्पेशली जब इंटरव्यूज में आ जाते थे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे तो आपकी सीवी आपको इंटरव्यू टेबल तक ले आएगी. ठीक है. सो मेक श्योर हमारा सीवी रिलेटेड या सीवी मेकिंग रिलेटेड सेशन नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ इन दैट एरिया. मेक श्योर कि आपकी सीवी बहुत अच्छी सी बनी हुई हो, आपकी स्किल सेट, आपकी जो भी अचीवमेंट है वो उस पर स्टेटेड हो. वो आपको इंटरव्यू टेबल तक तो ले आएगी, लेकिन उसके बाद वहां पे आपका टेक्निकल स्किल का भी इंटरव्यू हो रहा होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका बिहेवियरल जो इंटरव्यू है वो हो रहा होता है. Being somebody from the HR, I'm aware of the fact कि कुछ technical skills हैं जो हमें होती हैं, ठीक है, but they are very easily replaceable. कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, जो कि इजीली रिप्लेसेबल ना हो सके. कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ डिफरेंट आपको वो एक्सेल सिखा देते हैं, आपको SPSS सिखा देते हैं. यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं, हम सबको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है, और अगर नहीं भी आता तो वो ट्यूटोरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं. नो बिग डील अबाउट दैट. लेकिन आपका जो मेक एंड ब्रेक वाली चीज है किसी भी इंटरव्यू में, वो आपका बिहेवियर है. ठीक है. वो आपकी पर्सनालिटी को असेस कर रहे होते हैं. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं 5 चीजों पर, वो 5 चीजें जिनके बारे में हम आज इस सेशन में बात भी करने लगे हैं, वो 5 चीजों पे मैं उनको असेस कर रही होती थी. नंबर 1 वाज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर वर्क. नंबर 2 वाज देयर कम्युनिकेशन. नंबर 3 वाज देयर टाइम मैनेजमेंट. Number 4 was their conflict management, and number 5 was how they presented themselves.
ठीक है। सो ऑनलाइन इंटरव्यूज में तो हमें बहुत एडवांटेज मिल जाता है कि हमें कैमरा के पीछे होते हैं, नोबडी कैन सी अस, नोबडी कैन सी आवर बॉडी लैंग्वेज दैट वे। लेकिन जब आप फेस टू फेस इंटरव्यूज में होते हैं तो वो चीज भी मैटर करती है। सो एक इंटरव्यूअर के लिए आपकी पर्सनालिटी बस इतनी ही है जो इन 5 चीजों में उसने देख लिया, उसने असेस कर लिया। ऑल्सो यही 5 चीजें हैं जो आप फर्दर जब अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो प्रमोट हो जाते हैं, वो कौन से लोग हैं जो इतनी अच्छी जॉब्स पे पहुंच जाते हैं, वो कौन से लोग हैं जो इतनी प्रोग्रेस करते हैं। सो बच्चों, यही वो 5 चीजें हैं जो टाइम एंड अगेन जिन पे वो काम कर रहे होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, उनके बिहेवियर्स रिफाइन हो रहे होते हैं, एंड दे रीच टू अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे वो प्रमोशन के लिए, जहाँ पे वो बड़े बड़े रोल्स के लिए एलिजिबल होते हैं। So starting with the attitude. अच्छा, before we go in depth in these 5 things, पहली चीज तो ये है that I want all of you to listen to these 5 things very carefully. मेरा कंटेंट बहुत छोटा होगा because I wanted this session to be an interactive one, जिसमें आप लोग मैक्सिमम सवाल पूछ सकें। आप सब ग्रेजुएट कर रहे हैं, so I'm sure बहुत सारी एम्बिग्विटीज होती हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं कि इसके जो नेक्स्ट स्टेप है, जो आपकी यूनिवर्सिटी के बाद की लाइफ है, वो कैसी होगी, वहाँ कैसे एडजस्ट करना है। So even your questions, even if they are not related to personality development, I would be more than happy to address them and we can see what we can do about them. ठीक है? So now let's talk about the attitude. बहुत ही एक वेग टर्म है जो हम अक्सर अपने इंटरव्यू के जो फॉर्म्स होते हैं उसके पे भी लिख देते हैं, that we are going to assess the attitude. But what kind of questions do we ask under them? हम कैंडिडेट में क्या देख रहे होते हैं उस पर्सनालिटी के एक फैक्टर में कि अच्छा क्या चीज है, क्या एटीट्यूड है इसका। नंबर 1 इज कैन डू एटीट्यूड है इस बंदे का कि नहीं है। अगर इस बंदे को हम कोई नया टास्क दे दें, अगर हम इस बंदे को कुछ नया करने के लिए दे दें, क्या ये बंदा विलिंग होगा करने के लिए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने भी पढ़ा, आप लोग भी पढ़ रहे हो, एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टेन हद तक बहुत कुछ सिखाती है, आपको थियरी सिखाती है, आपको टीम वर्क सिखाते हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ के टास्क, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का जो वर्क के पूरे प्रोसेस होता है, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। सो आर यू willing to take the challenge? Do you have the willingness to learn? Do you have the willingness to admit your mistakes and work on them? These are the things that really matter in your work field. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि जो मेरी पहली जॉब थी, इट वाज पार्ट टाइम जॉब और वो मार्केटिंग की फील्ड में थी। मेजर्स मेरे एचआर के थे, बट आई स्टार्टेड वर्किंग इन द मार्केटिंग अलोंग विद माय एमबीए। अब उसमें हुआ ये कि वो प्रोजेक्ट जो है सर्टेन फेजेस में डिवाइडेड था। फर्स्ट फेज वाज अबाउट मार्केट सर्वे, तो वो तो मुझे आता था, वो तो हमेशा से सीख रहे थे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैड टू डू सम प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारा मार्केटिंग मटेरियल तैयार करना था। Now when I took on the project, I knew that this is something जो मुझे आती नहीं है, but I also knew कि अगर ये चीज मैं सीख जाऊं तो मैं easily कर सकती हूँ। So this is the attitude that is required out there, कि even अगर इस point पे आपको कुछ नहीं आता, even then आप उठे और आप कहें ठीक है, I am going to take this opportunity and I will learn side by side जो भी चीज मुझे नहीं आती है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात ये कि देयर इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, अब आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग एक नई फील्ड में जा रहे हो, एक नया फेज स्टार्ट कर रहे हो। द बेसिक साइन ऑफ मैच्योरिटी इज दैट यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। दिस इज समथिंग दैट अ वेरी वाइज पर्सन वंस सेड टू मी कि जब आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, दैट्स व्हेन उसका सिंबल ये होता है कि आपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। हमने भी कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए थे एंड वी आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जब भी टीम वर्क हो रहा होता है तो थोड़ी बहुत ब्लेम गेम चल रही होती है कि मैम उसने काम नहीं किया, मैम उसने काम नहीं किया। दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे आकर जब आप किसी भी वर्क प्लेस पे होते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, you have the courage to admit कि हाँ हमसे गलती हो गई है, and you also have the courage to say कि अच्छा अगर मुझसे गलती हो गई है, so these are the ways I can correct this problem। ठीक है, so वो जो आपकी एक पर्सनालिटी उससे बनेगी, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनेगी।
somebody who's mature, somebody who's responsible, somebody who's confident to admit and then move forward with it. इसी से एक और चीज भी सामने आती है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे यूं करते हैं कि when they are new in the field they start stressing about little things a lot. वो ये करते हैं कि अच्छा जी थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो कह देंगे बस हमसे तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा. आपने Uzair, do you have any question? अच्छा, I'm assuming कि शायद उज़ैर का माइक ऑन है और उनको पता नहीं है. So let's mute him. If he would have any question तो वो पूछ लेंगे. अच्छा, so मैं ये कह रही थी कि एक तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक लेना शुरू कर देते हैं कि वो अपने आप को मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहेंगे और उस पॉइंट पे आ जाते हैं when they start losing their self confidence. Now this is something extremely wrong. This is extremely dangerous for you to start your career with कि अगर आपने आप सेल्फ क्रिटिकल हो लेकिन उस हद तक कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकें, इस हद तक नहीं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दें. ठीक हो गया. एंड लास्ट थिंग, आई एम श्योर आप सब लोगों ने लोकस ऑफ कंट्रोल की थ्योरी पढ़ी होगी. जिस तरह से मैंने अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की है, वही कॉन्सेप्ट होता है लोकस ऑफ कंट्रोल में भी कि देयर इज दिस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. अगर तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, यू टेक कंट्रोल ऑफ इट, यू टेक चार्ज ऑफ इट एंड यू से अच्छा ठीक है जो भी होगा उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ. दैट्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. एंड इफ यू स्टिल blame others for your shortcomings, for things that go bad in your life, then that's external locus of control. ठीक है. सो आप लोगों ने अपने आप में ये आदत डेवलप करनी है कि जो भी चीज़ होनी है, अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, यू मेक योर ओन चॉइसेस, you own them and you stick with them, you work hard for them and you know at the end of the day कि अच्छा ठीक है, जो भी है वो मेरी choices थी, you own them and then you work towards them, you correct yourself. जिंदगी बहुत लंबी होती है, you gain experiences with time, so these things build your personality bit by bit, day by day. ठीक हो गया. so एक तो हमने एटीट्यूड की बात कर ली. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कम्युनिकेशन. It's extremely important. I cannot emphasize enough कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी शदीद इम्पोर्टेंट है when you're in an organization. ठीक है. आप जब यहाँ पर एक दफा आ गए हैं ना, तो you would be either communicating with your seniors, your colleagues, your juniors. अभी तो खैर आप लोग खुद जूनियर पोजीशन पे जा रहे होंगे, तो आपके पास एक लाइन होगी और वो डिफरेंट तरह के सीनियर्स होंगे और आप लोग मुसलसल कम्युनिकेट कर रहे होंगे आपस में अपने टीम मेंबर्स के साथ भी. फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट आप लोग अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भी कर रहे होंगे. एंड दिस कम्युनिकेशन, I want to make it very clear, this communication is, it's not just the verbal. ठीक है. आपकी written communication, आपकी verbal communication और आपकी non verbal communication, basically जो आपकी body language है, they are all of the same importance. जब आप written communication की बात कर रहे हैं, I'm going to give you few tips about that. प्लीज अपने पास रखें, हमेशा रखें, क्योंकि आई हैव सीन कि जो हमारे ग्रेजुएट्स आते हैं कभी कभार उनको एक सिंपल ईमेल ड्राफ्ट करनी नहीं आ रही होती है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई शुरू में आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इस पे वर्क फील्ड में जाने से पहले ही काम कर लें. ठीक है. अब आपने जब ईमेल टाइप करनी है, मेक श्योर कि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इट्स ऑन द टॉप. ठीक है. आपकी जो पैराग्राफ्स हैं उनको आपने प्रॉपरली अलग अलग रखा हो, हर पैराग्राफ में नई बात हो, आपकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो प्रॉपर हो. ठीक है. दूसरी बात ये कि आपने अपनी स्पीच में और अपने रिटन कम्युनिकेशन में देयर शुड बी क्लैरिटी एंड देयर शुड बी सिंप्लिसिटी. जब अभी तो हम सब यहाँ एचआर वाले बैठे हैं ना, सो आई कैन थ्रो जार्गन्स एट यू. मैं आपको थ्योरीज बोल दूं, मैं आपको कुछ भी बोल दूं, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम इजीली. लेकिन जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होते हैं, तब वहां पे आपके पास डिफरेंट फील्ड से लोग आ रहे होते हैं. यू माइट हैव इंजीनियर्स विद यू, यू माइट हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विद यू, you might have people from HR, you might have people from finance, you might have people from operations. Now they all have their own jargons. आपका काम ये है that you have to communicate in the simplest manner possible. ठीक है. ताकि आपकी जो बात आगे आपने कन्वे की है वो अगले को समझ में आ जाए.
जो आपकी एक पर्सनालिटी, जो आपकी एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है लोगों की नजर में, वो ये है कि अच्छा इसकी बात समझ में आती है। कोई आपकी ईमेल देख के कि आपसे बात करते हुए कतराता नहीं है कि अब इसकी ईमेल आ गई, अब इस ईमेल को समझें कैसे हम, ठीक है। सो आपकी ये वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी। नाउ लेट्स गो इनटू योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। जिस टाइम तक हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, जाहिर है आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है, आप बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी होते हैं, आई डू नॉट वांट टू जनरलाइज ऑन इट, ठीक है। लेकिन once you're in the office, you're in the corporate environment. Even if you're not in the corporate environment, maybe आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, मे बी आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक। बट इन सब चीजों में जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपका लेड बैक एटीट्यूड है, आप ध्यान नहीं दे रहे, यू आर नॉट सिटिंग स्ट्रेट, इट वुड क्लियरली शो कि यू आर नॉट इवन इंटरेस्टेड in this whole situation, you're not interested in the meeting, you're not interested in what other people are saying. It would also show कि आपका खुद का एक लेड बैक एटीट्यूड है, आपकी पर्सनालिटी उस तरह से बिल्ड नहीं हुई भी है, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर नॉट समबडी हु टेक्स इंटरेस्ट, ठीक है। एक डिसइंटरेस्ट के साथ बैठेंगे, वो डिसइंटरेस्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होता है। सेकंड, जब आप खड़े हुए भी हैं तो भी आपने यही करना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप आगे पीछे हर जगह देखते हैं, again it's not the right thing. If you're talking to somebody, maintain an eye contact, ठीक है। we maintain an eye contact, so we are assertive, so we are confident, so we can tell the other person that yes, we're interested in this conversation, but we know what we are saying and we want to have this conversation, सही है। so आपकी कम्युनिकेशन में आपकी वर्बल, आपकी रिटन और आपकी बॉडी लैंग्वेज, these three things are very important. Another important factor जो कि ऑफिस में या फिर कॉर्पोरेट में हर जगह ये चीज होती है, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट माय जूनियर्स कि ये काम आपने जाके नहीं करना, और वो है ऑफिस गॉसिप। वंस यू आर इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, ये चीजें, इस तरह का बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी पर और आपके जो इमेज, जो परसेप्शन आपकी बन रही है, इट नेगेटिवली इफेक्ट्स इट, एक्सट्रीमली नेगेटिव इफेक्ट। अगर आप किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर, लेग पुलिंग कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो बच्चों दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट्स रिक्वायर्ड आउट देयर। बाहर, जहां से जब आप बाहर निकलोगे तो किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है, और किस तरह से आप काम कर रहे हो, किस तरह से आपका काम और आपका जो बिहेवियर है, यही मिलकर आपकी एक इमेज बिल्ड करता है, ठीक है, यही मिलकर आपकी एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप जो कहने लगे हैं, आप क्या कहने लगे हैं। अगर आप किसी के बारे में बात करने लगे हैं तो आप किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से बाहर आपने एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाना है और वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सो इवन इफ यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, इवन इफ यू वांट टू नेगेट समबडी, इवन इफ यू वांट कि आपने किसी चीज के ऑपोजिट व्यू देना है, डू इट इन अ मैनर व्हिच इज प्रोफेशनल, डू इट इन अ मैनर व्हिच शोज दैट यू लर्नड हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देना है, एंड यू नो हाउ टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड नॉट ऑन योर पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है। सो ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड पार्ट, जिसके बारे में बात कर रही थी, वो टाइम मैनेजमेंट का है। आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है दैट हाउ काम एंड कंपोज्ड यू लुक। द काम एंड कंपोज्ड, जितने आप कंपोज्ड होंगे ना, उतने ही आपसे एक कॉन्फिडेंस की वाइब आएगी, उतने ही लोग आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम्स लेके, उतने ही कंपनी आपको ट्रस्ट करेगी। The second company gets to know that you have the ability, that you have the stamina to manage things in tough times, to manage multiple tasks at the same time, and still stay calm and composed. Then you are the person जिस पे लोग rely कर सकें, जिसको further chances मिलते हैं, जिसको further opportunities मिलती हैं। और ये सब करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, वो है टाइम मैनेजमेंट आपकी। जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हम तो भी जब पढ़ रहे थे तो यही था कि हम ग्रुप में काम कर रहे होते थे, ग्रुप में कोई एक दो लोग होते थे जो काम कर लेते थे, बाकी नहीं कर रहे होते थे, या फिर ना वो ब्लेम गेम चल जाती थी कि मैम उसने काम नहीं किया, मैम उसने काम नहीं किया,
असाइनमेंट्स कॉपी कर लेते थे और कुछ नहीं, तो ठीक है, तो आपका काम खत्म हो गया। पर प्रोफेशनल उसमें आकर आप जब अपने ऑफिस में हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, देयर आर सर्टेन टास्क दैट आर असाइन्ड टू यू, और वो टास्क डिफरेंट नेचर के आ रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, देयर आर मल्टीपल टास्क विद स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। आपने उन सब में अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। अच्छा, आई एम सेइंग दिस के टाइम मैनेज करना, इट्स वेरी इजी टू से दिस, इसलिए मैं आपको साथ टिप्स भी दूंगी, सो डोंट जस्ट से कि अच्छा मैम आई उन्होंने कहा टाइम मैनेज करो, वो चलेंगे। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आपने टाइम मैनेज करने के लिए करनी है। नंबर 1 इज दैट यू स्टार्ट मेकिंग स्केड्यूल ऑफ एवरीथिंग। आपके पास जो टास्क आ रहे हैं, यू नीड टू मेक अ स्केड्यूल एंड देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। अभी प्रायोरिटाइज कैसे करने हैं? I had a teacher once in my BBA and she told me, और उनको उनके बॉस ने बताया था कि उनका करियर का स्टार्ट था, बहुत सारे टास्क आ रहे थे एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ देम। उनसे डेडलाइंस मिस हो रही थी, उनसे काम मिस हो रहे थे, उन्होंने जहाँ जहाँ कॉल्स करनी होती थी वहाँ कॉल्स नहीं की भी होती थी, क्लाइंट से अलग नाराज हो रहे थे। सो इन ऑल ऑफ दिस हर बॉस सजेस्टेड हर कि आपने अपनी जिंदगी में जब भी किसी भी टास्क की प्रायोरिटाइज करना है उसको, तो आपने दो चीजों की बेसिस पे करना है। नंबर 1 इज द अर्जेंसी ऑफ द टास्क एंड नंबर 2 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क। ठीक है, कि एक तो वो टास्क अर्जेंट कितना है, कितनी जल्दी आ रही है वो आपकी डेडलाइन, वो डेडलाइन इस संडे को है, नेक्स्ट संडे को है, या फिर 2 हफ्ते बाद की है, या फिर 3 हफ्ते बाद की है। नंबर 2 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क, कि उस टास्क को करना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर उसको आप थोड़ा बाद में कर लेंगे तो ठीक है, या हो सकता है उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, उसकी जो वैल्यू जनरेशन है वो इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है, सो इस तरह से दो चीजों पर आपने अपने जितने भी टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। इसकी एक क्वाड्रेंट बनती है, वो अगेन प्रोबेबली आप लोगों ने अपनी थ्योरी में शायद कहीं ना कहीं पढ़ी हो, कि जहाँ जो सबसे ज्यादा अर्जेंट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको हम क्राइसिस मैनेजमेंट में डालते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डील विद फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं दैट आर हाईली इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट वेरी अर्जेंट। ठीक हो गया, सो वो आपने सेकेंड प्रायोरिटी पे करना है। थर्ड प्रायोरिटी पर आपके पास चीजें आ जाती हैं वो जिस तरह के जो अर्जेंट हैं और फिलहाल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्टली इज योर टाइम वेस्टर्स। जिस तरह से हम सबको आदत हुई भी होती है दैट वी स्टे ऑन सोशल मीडिया एंड वी स्टे ऑन इट फॉर द लॉन्गेस्ट आवर्स पॉसिबल, हमें पता ही नहीं चलता, हम स्क्रॉल किए जा रहे होते हैं, बीच में हमारा टाइम निकला जा रहा होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अवॉइड एट एवरी कॉस्ट, तब जाके आपका टाइम अच्छे से मैनेज होगा। वो जो 1 घंटा हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं, वो अगर हम अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके अपना काम खत्म कर लें तो ट्रस्ट मी वो आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है जिसकी इंतहा नहीं होती है। अच्छा, ये तो मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया कि अच्छा ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनमें हम करते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, जो मेरी लास्ट जॉब थी, ठीक है, उसमें अगर मुझे अपना काम डिवाइड करना होता था तो मैं 3 चीजों में करती थी। एक तो जो मेरे डेली के टास्क हुआ करते थे, ठीक है, अब डेली के टास्क ये होते हैं दैट विद टाइम, अब जिस तरह से अटेंडेंस मैनेज करना हो गया, लोगों की एब्सेंस देख लेनी, ठीक है, उनके अगर कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो उनका देख लेना, बेसिकली एचआर में बहुत सारे डेली रूटीन के ऑपरेशंस के काम होते हैं। सो यू लुक इनटू देम ऑन डेली बेसिस। अब जिन चीजों पे आप डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर अर्जेंट, आपने देखनी है, आप उन पे एक स्किल डेवलप कर लेते हैं, आप उन पे कमांड आ जाती है आपको, सो वो आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि वो जो डेली के काम होते थे वो सुबह का 1 घंटा रख के उसमें फटाफट आपने कर लिया। उसके बाद 2 तरह के और काम होते थे, एक होता था डेडलाइन बेस्ड, ठीक है, जो कि आपने शायद 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में करना होता था, जैसे कि तब हमने रिक्रूटमेंट करनी है, हमने कोई पोजीशन फिल करनी है, तो उसके लिए एक सर्टेन डेडलाइन होती थी कि बाय विद इन 2 वीक्स हमने ये करना है। और फिर आपके पास लास्ट चीज आती है डेवलपमेंटल काम, लॉन्ग टर्म काम, प्लानिंग से रिलेटेड काम, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड काम। So it was a startup and there wasn't any HR policy and there wasn't any HR handbook. So I knew that this was really important before we hired new people and before we take them on board. So I knew कि ये बहुत important काम है, मेरे पास मेरे बॉस ने मुझे कोई डेडलाइन नहीं दी हुई थी इसके लिए, लेकिन मुझे पता था कि इम्पोर्टेंट है being the HR person. So what I used to do is कि जब सुबह का मैंने 1 घंटा रख लिया उसके लिए, आपके डेली के कामों के लिए, तो दिन में 1 घंटा जो मुझे पता होता था कि ऑफिस में इतना कोई शोर शराबा भी नहीं होगा,
कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा, वो 1 से 1.5 घंटा मैंने डेफिनेटली डेवलपमेंटल वाले काम के लिए, पॉलिसी वाले काम के लिए देना होता था। उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप जैसे भी करें, आप अपने एफिशिएंटली काम करो, आप अपना स्केड्यूल बनाओ, आप अपना सोशल मीडिया अपना फोन साइड पे करो, आप अपनी डेडलाइंस पे काम करो। दे आर इम्पोर्टेंट टू, दे आर अर्जेंट टू। लेकिन अक्सर हम जब अपने कामों में बिजी होते हैं तो हम यूं करते हैं कि हम डेली रूटीन की चीजों में लगे रहेंगे, उसके बाद हम डेडलाइन रिलेटेड चीजों में लगे रहेंगे, और वो जो आपका लॉन्ग टर्म वाला काम होता है वो साइड पे रहते रहते रह जाता है। ठीक है, सो आई रियली होप यू ऑल गेट इनटू अ जॉब जहाँ पे आपको इन तीनों का फेवर मिले, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, आपके करियर में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी, आपके टाइम मैनेजमेंट में भी। ठीक है, अच्छा, सो ये थोड़ी सी टिप्स थी आपकी टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड। आई रियली होप कि यू आर एबल टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम व्हेन यू आर इन द फील्ड। और इवन अभी भी अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कोर्स वर्क बाकी है, सो यू कैन यूज दिस थिंग। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास जो फोर्थ चीज आ जाती है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। जिस टाइम पर भी हम इंटरव्यूज लेते थे, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि हम जिस बंदे को ऑन बोर्ड ले रहे हैं वो अपना कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करता है। ठीक है, यू वुड ऑफन सी पीपल के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दे वुड इंस्टेंटली बिकम एग्रेसिव, दे वुड बिकम पर्सनल। और ऐसे लोगों के लिए हमारी क्या राय होती है? हम ऐसे लोगों से कतरा रहे होते हैं, ठीक है, इनसे बात करने से परेशान हो रहे होते हैं। एक एक जो उनका इमेज हमारे दिमाग में बनता है, इट्स नॉट ऑलवेज अ पॉजिटिव इमेज। वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू देम, वी आर ऑलवेज अफ्रेड कि कहीं इनसे कोई बात की तो मसला ना हो जाए। ठीक है, सो जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ग्रेजुएट को, या किसी को भी आप किसी भी पोजीशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, यू डेफिनेटली लुक फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब अक्सर इंटरव्यूज में तो हर कोई कह देगा कि जी मैं बहुत अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये वो। बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग, एवरीबडी इज नोटिसिंग यू, एवरीबडी इज नोटिसिंग यू। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी टीम में काम करें और आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, सो कैसे आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना है, इस पे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी। आई हैव बीन इन द सिचुएशन जहाँ पे आई वाज न्यू इन माय करियर एंड देयर वाज समबडी हु वाज, एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको और आप लोग देख सको कि इफ दिस सिचुएशन हैपेंस टू यू, अगर आपके केस में इस तरह से कुछ हो तो आपने कैसे मैनेज करना है। सो हुआ कुछ इस तरह से कि मेरे बहुत अच्छे कोलीग थे, बट his habit was to interfere in what I used to do. ठीक है, he was from the software end, I was from the recruitment end, and I did not like the fact that he was interfering in my work. So I confronted him and I asked him कि अच्छा आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मेरी email ID को access कर रहे हैं और आप क्यों देख रहे हैं। So जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया वो तो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीका था, बट इट मेड हिम एग्रेसिव। ठीक है, जब वो एक एग्रेसिव सिचुएशन हो गई है और आपके इर्द गिर्द 7-8 लोग बैठे हैं, आप एक फ्लोर पे हैं, ठीक है, आप सब एक ही फ्लोर पे काम करते हैं, तो वो उस टाइम पर वहां पे 2 लोगों की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, एक उस बंदे की जो कि सॉफ्टवेयर टीम से था और एक मेरी। The way I handled the situation, the way I approached it was completely different, and the way he handled the situation and the way he approached the situation was completely different. मेरा कहने में एक प्रोफेशनलिज्म था, उसके कहने में एक एग्रेसिवनेस थी कि मेरी मर्जी में जो दिल करूंगा करूंगा। That's what he said to me. So हुआ क्या, वहां पे लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया कि मे बी दिस पर्सन जो इतना एग्रेसिव हो रहा है, he is not suitable for further promotions, he is not suitable for team management, he is not suitable in any capacity कि उसको कोई बड़ा रोल दिया जा सके। But on the other hand, this person जिसने confront किया है, she was on the right, she knew how to talk, she knew how to confront. अच्छा, अब हुआ ये, इसमें से एक और चीज निकलती है, वो ये है कि नेवर मेक अ ड्रामा आउट ऑफ थिंग्स। ठीक है, स्पेशली जब आप फ्लोर्स पे काम कर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाता है, अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो भी गई है, एंड इवन इफ यू फील कि जो सामने वाला बंदा है डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, the first thing you need to do, you need to take your issue, you need to take your conflict to the side of the hall. ठीक है, आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, आपके पास कोई ऑफिस है अवेलेबल, आप वहां पर लेकर जाएं और आप वहां पर अलग से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। यू डू नॉट नीड टू मेक अ ड्रामा आउट ऑफ इट,
You do not need to make the whole conflict public कि पूरा ऑफिस एक सीन देखे और वो एक पूरा तमाशा क्रिएट हो. उससे आप पर भी बुरा इफेक्ट आएगा, जो सामने वाला है उस पर भी बुरा इफेक्ट आएगा, और एक ओवरऑल जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो भी खराब होता है. ठीक है, बट करंटली हम सिर्फ अपनी बात करें, सो लेट्स फोकस ऑन दैट. आपने सबके सामने एक तो एक इशू क्रिएट नहीं करना, आपने बहुत ही आराम से एड्रेस करें कि वी आर बोथ आर केपेबल. What you could say to that person is that we are both capable of handling the situation in an amicable way. So let's discuss it. Let's sit down and discuss. ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप साइड पे हो गए. दूसरी बात ये दैट अगर आपको खुद गुस्सा आ भी रहा है, ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल कि अगर कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, कोई आपको कन्फ्रंट कर रहा है, कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे, इट्स वेरी नेचुरल टू गेट एग्रेसिव. इट्स वेरी नेचुरल कि आपको खुद भी गुस्सा है. बट अंडर सच सिचुएशन यू हैव टू कीप काम. अगर आप भी गुस्सा करेंगे, सामने वाला भी गुस्सा करेगा, दैट डज नॉट शो के जी बहुत फिट सीन है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैंने बिल्कुल दुरुस्त कर देना है उसको. दैट शुड नेवर बी योर अप्रोच. जैसे हमने शुरू में बात की ना कि द वे वी थिंक उसी तरह से हम फील करते हैं, उसी तरह से हम बिहेव करते हैं. सो इफ यू टेक दिस होल सिचुएशन, आप सोचे ही ऐसे कि मैंने तो उस बंदे को दुरुस्त करना है, ठीक है, मैं इसको अभी सीधा कर दूंगा या सीधा कर दूंगी, तो नेचुरली आप एक बहुत ही कन्फ्रंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जा रहे हैं और आप एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जा रहे हैं. लेकिन अगर आप ये सोचें कि ठीक है, ये सामने वाले बंदे को तो समझ नहीं आ रही, बट आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन हियर, ठीक है, आई एम द सेंसिबल वन हियर, सो आई वुड हैंडल इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. उसके बाद क्या होगा, जब आप यूं करेंगे ना, जब आपकी थिंकिंग ये होगी, तो आप ऑटोमेटिकली गुस्से में नहीं आएंगे, बल्कि यू वुड ट्राई टू टेक द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. आप उस बंदे को बिठाएंगे. और यहाँ पर आपने ये काम करना है कि यूजुअली जब हम कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में होते हैं ना, हम लोग यूं करते हैं कि हम स्टार्ट कर देते हैं कि जी आपने जो मुझसे फलानी बात कही है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, आपने वैसे क्यों कह दिया. बच्चों, दैट्स अ वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, कीप योर फीलिंग्स असाइड एंड टॉक इन द लॉजिकल मैनर दैट यू कैन. आपके तरफ से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने उसके लिए लॉजिक देनी है. डीपर्सनलाइज द सिचुएशन. अपने आप को डिटैच करें उस सिचुएशन से इस तरह से कि आपने ये नहीं कहना कि जी आपने मेरे पर्सनल अटैक कर दिया. पर्सनल अटैक से अवॉइड करें. कोई ऐसी बात ना कहें जो कि रिवर्स ना हो सके. एंड लास्टली, अपने आप को इस चीज से निकाल कर लॉजिकली बात करें. मेरी और उनके केस में जो शेयर्ड गोल था वो ये था कि उनकी टीम की जो प्लेसमेंट होनी थी, उनकी जो टीम में लोग आने थे वो मैंने लेकर आने थे. मेरे लिए उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा थी क्योंकि जो टेक्निकल इंटरव्यूज थे वो उन्होंने करवाने थे. सो मेरे गोल्स उन पे डिपेंडेंट थे और उनके गोल्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो मैं शेयर्ड गोल्स पे बात करती हूँ कि अगर हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा तो हमारे शेयर्ड गोल्स कैसे अचीव हो सकते हैं. नेवर गो लाइक दिस के ये हो गया, वो हो गया, आपने ऐसे कह दिया. क्योंकि जितनी दफा आप क्यों करेंगे ना आपका एक गोल अचीव होगा और आप लोगों का वो जो एक वर्क रिलेशनशिप होता है वो भी इफेक्ट होता है. सो नेचुरली जब इस तरह की सिचुएशन हुई, हमने इस तरह से उसको मैनेज किया. विद इन अ डे और टू उनको भी उनकी बात समझ में आ गई कि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया वो गलत था. ही अपोलोजाइज्ड एंड लेटर ऑन वी बिकेम रियली गुड टीम मेंबर्स. ठीक है, सो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने की सलाहियत है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का. और यूनिवर्सिटी में भी बार बार होते हैं, वर्क प्लेस में भी बार बार होंगे. बस ये है कि यूनिवर्सिटी में आप अपने फ्रेंड से लड़ रहे होते हैं, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट वे टू डील विद इट. वर्क प्लेस में आपने पर्सनल नहीं होना, आपने एग्रेसिव नहीं होना. ऑलवेज कीप द लॉजिक एट फ्रंट, तभी सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी. और एक चीज ये है कि अच्छा, इसमें अगर किसी का ये सवाल आता है कि सामने वाला बहुत एग्रेसिव हो रहा है या फिर बहुत पर्सनल हो रहा है, सो देयर इज ऑलवेज ग्रीवेंस पॉलिसी इन योर कंपनी. जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप लोग जाएंगे वहाँ ग्रीवेंस पॉलिसीज होती हैं. सो आई वुड नेवर सजेस्ट यू to take abuse from anyone at your workplace. If something like that happens, go for the grievance और आप अपनी कंप्लेंट फाइल करें. लेकिन जहां तक आप मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को, डेफिनेटली डू दैट. अच्छा जी, लास्ट चीज जो मेरी तरफ से है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन इज हाउ यू मैनेज योर अपीयरेंस. ठीक है, जिस टाइम पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, द सेकंड यू एंटर द रूम या फिर जब आप ट्रेनिंग्स के लिए भी आ रहे होते हैं, तो हम लोग ड्रेसिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं. और वो फोकस इसलिए होता है दैट इफ यू ड्रेस वेल, तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में स्पेशली अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में,
तो लोग आपके पास तभी आएंगे अपने काम को लेके व्हेन दे कैन सी कि अच्छा ये बंदा वेल ड्रेस्ड है, ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ऑटोमेटिकली एक ऑरा बन जाता है आपका, ठीक है। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, अगर आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड होंगे, तो पीपल वुड कम टू यू, पीपल वुड ऑटोमेटिकली अज्यूम कि अच्छा आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द पीपल, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अच्छे से तैयार होंगे, आप अपने ऑफिस जाएंगे, बीट फॉर द इंटरव्यू, बीट फॉर द ट्रेनिंग, बीट फॉर योर नॉर्मल डेली लाइफ, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप खुद इन कमांड, इन चार्ज फील करेंगे अपनी जिंदगी का, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी में ऐड करना शुरू कर दें फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो आपकी पर्सनालिटी को इस तरह से बिल्ड करेगा that you are able to secure good jobs, that you are able to secure good positions that you want in your life. ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये कर लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। रिमशा, do I have you here? Yes, ma'am. हाँ जी। अच्छा रिमशा, मेरी तरफ से जो कंटेंट वाइज चीजें थी वो यही थी। आई वाज होपिंग कि इंटरैक्टिव सेशन होता तो बीच बीच में क्वेश्चंस आ जाते, पर अब यूं कर लेते हैं कि किसी के कोई सवालात हैं तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम। Okay, किसी को क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स? Is anybody willing to ask any question for ma'am? मैम लगता है सबको बहुत अच्छा समझ आ गया। यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई है। नहीं, आपने बहुत अच्छा जो है वो गाइड किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। ठीक है, चलें फिर। वी आर वेरी थैंकफुल। मैम। यस हिरा। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था और अच्छा था, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम एट ऑल हिरा। अच्छा, सो आई एम अज्यूमिंग कि कोई सवाल नहीं है, सो वी वुड क्लोज द सेशन हियर। क्लोजिंग पे मैं यही कहूंगी कि जो चीजें मैंने बताई हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप लोगों ने खुद जिन पर काम करना है। जब आप काम करना शुरू कर मैम एक देंगे। क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? जी 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 श्योर, पूछो रमशा आप। मैम सोशल वेरिएबल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, जैसे जॉब नेचर है, अब या तो एजुकेशन है, तो ये डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करते हैं रमशा, बिल्कुल करते हैं। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप एजुकेशन ले रहे थे तो आपकी क्लास किस तरह की थी, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था, ऑल दीज थिंग्स दे ऐड टू योर पर्सनालिटी। अगर आप लेक्चर से किसी ऐसी क्लास में हैं जहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, सारे टीम मेंबर्स जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काम करने में, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी में टीम वर्क वाली एक चीज आ जाएगी, ठीक है, आपको साथ में काम करना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी क्लास में एक एनवायरनमेंट बन गया है जहाँ पे लोग मुसलसल बैक बाइटिंग कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, इनफैक्ट एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें लेग पुलिंग है, जिसमें बैक बाइटिंग है, जिसमें लोग एक दूसरे को जो है वो हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही एक पर्सनालिटी का ट्रेट जो है वो आप अपने ऑफिस में भी लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। आपको यही लग रहा होता है दैट यू आर आउट देयर टू किल एवरीबॉडी एल्स, और बस आपने खुद प्रोग्रेस करनी है। सो यस, दीज आर द फैक्टर्स दैट ऐड टू योर पर्सनालिटी। आपकी एजुकेशन भी, एंड सेम गोस फॉर योर ऑफिस एज वेल। हो सकता है आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे
आप 6 से 7 साल काम कर रहे हैं, सो नेचुरली आप वो ट्रेड्स लेना शुरू हो जाते हैं। अगर तो वहाँ पे अच्छी ट्रेड्स थी तो हाँ आप भी वो चीज डेवलप कर लेंगे अपने दिमाग में। अगर वहाँ पे यही थी कि आपने कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को जो है वो पीछे करना है, तो नेचुरली ये चीजें आएंगी। बट द बॉटम लाइन इज कि इन सब चीजों के बावजूद जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, जो आपका एनवायरनमेंट है, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो खुद की सेल्फ असेसमेंट है, जो सेल्फ एवेल्युएशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को एवेल्युएट कर रहे होगे ना, लेट्स जस्ट से बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ, बाय द एंड ऑफ एवरी वीक, आप देखो आपने क्या काम किया, आपका बिहेवियर कैसा रहा अंडर सर्टेन सिचुएशन, तो फिर आपकी पर्सनालिटी आप खुद चार्ज लेना शुरू कर देते हैं। बाहर के फैक्टर्स कम आप पर असरअंदाज होते हैं और आप जो खुद हैं वो उसको ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर रहे होते हैं। सो जिस तरह की भी आप सिचुएशन में होगे रमशा, और दिस इज फॉर एवरीबॉडी एल्स, आप जिस तरह की भी सिचुएशन में हो, आपने खुद अपने ऊपर बहुत काम करना है। यहाँ से आगे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि आपने अपने आप को किस तरह से बिल्ड करना है, किस एरिया में बिल्ड करना है, और किस तरह के ट्रेड्स आपने अपने आप में लेकर आने हैं। एक्सरे भी करवा लिया था, तो वो एक्सरे वाले ठीक है मैम। पता ही होगा, तो एक्सरे वाले के रिपोर्ट्स तो रिपोर्ट We have Sadia Rani. Sadia, do you have any question? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? जी मैम बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था, इंफॉर्मेटिव। मैम एक चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर किसी की पर्सनालिटी हमें अट्रैक्ट कर रही है तो क्या उसकी टाइम ड्यूरेशन होगी कि वो हमें कितने टाइम तक मतलब अट्रैक्ट करती है, या इस तरह? सादिया देखो, वही वाली चीज है कि हो सकता है आप किसी से मिले हैं, ठीक है, और 5 मिनट में या 10 मिनट में या आधे घंटे की एक मीटिंग हुई, आपने उसकी पर्सनालिटी को एक सर्टेन तरीके से असेस किया। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने उसकी पर्सनालिटी को किन किन फैक्टर्स पे असेस किया है। डिड यू जस्ट गो फॉर देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, डिड यू जस्ट गो फॉर हाउ दे लुक, ठीक है। सो अगर आपने सिर्फ इन चीजों पे फोकस किया है तो वो टाइम ड्यूरेशन जो है ना उसकी छोटी ही होती है। एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से वो अपने डेली मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं ना, दैट्स मेजर पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। सो इनिशियली तो आप देख लेते हो कि अच्छा इस बंदे की कम्युनिकेशन भी ठीक लग रही है, इस बंदे का ड्रेसअप भी ठीक है, कहने कहने में सब ठीक है। बट ऑन द लॉन्गर टर्म अगर उस बंदे ने जो कहा है वो उसके साथ स्टिक करता है, उसका जो बिहेवियर है वो भी उसके कहने वाली बातों के साथ मैच करता है, then of course you stay impressed with the personality, of course you start learning from that person. लेकिन let's just say अक्सर ऐसे होता है, इंटरव्यूज में आपके पास लोग आते हैं, देखने में सब कुछ ठीक होता है, आप उनको हायर भी कर लेते हैं, लेकिन जब असल में वो सिचुएशन आती है दे एक्ट इन द कम्प्लीटली ऑपोजिट वे, ठीक है। सो उस पॉइंट पर जाकर जब आप उनको असल में उस तरह से बिहेव करते देख रहे होते हैं, सो नेचुरली फिर उनकी पर्सनालिटी वो जो है ना वो शैटर हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आपके सामने बिल्कुल नया बंदा आ रहा होता है उस टाइम पे। तो दैट्स द केस। आपने जो कहा है यू प्रूव इट विद योर एक्शंस विद टाइम। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? इफ नॉट तो फिर हम सेशन क्लोज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम वाजिद, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और समझ दिया है। थैंक यू। एक क्वेश्चन था मैम आपसे पूछना था। जी जी जरूर पूछें माजिद। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू मेक द पर्सन यूनिक? ऑफ कोर्स इट डज, ऑफ कोर्स इट डज, ठीक है। आपके पास जिस तरह सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब अपनी यूनिक ट्रेड्स, एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ आते हैं, ठीक है। हम सब की एक डिफरेंट पर्सनालिटी इसीलिए है क्योंकि हम लोग डिफरेंट एनवायरनमेंट में पले बड़े, हमने डिफरेंट सोशल सर्कमस्टांसेस देखे, हमारे डिफरेंट जानने वाले लोग थे। सो उन सब के छोटे छोटे हमने उनसे चीजें सीखी और एक हमारी खुद की पर्सनालिटी बनी। फिर वो टाइम हमने खुद अपने ऊपर कैसे काम किया,
हमने कौन सी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की, क्या हमने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की कोशिश की, क्या हमने मुश्किल टाइम पर या फिर जब तक सिचुएशंस थी उनमें हम लोगों ने कैसे चीज़ों को डील करने की कोशिश की. सो यस, ऑफ कोर्स जो आपकी पर्सनालिटी है वो यूनिक ही होती है और वही है जो आपको बाकियों से डिफरेंट बना रही होती है. अदरवाइज तो इंसान इंसान है, वो तो सारे सेम भी हो सकते थे. ठीक है. सो यस, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी आपको यूनिक बनाती है फ्रॉम द अदर्स. आई होप आई हैव आंसर्ड योर ठीक है मैम, क्वेश्चन. थैंक यू. यही सवाल था आपका? जी मैम, थैंक यू. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं. वी हैव शाहरुख ज़िया. जी शाहरुख. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो उसको वो जो ओरिजिनल है उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए या फिर कुछ मतलब लाइक अपनी फेकनेस शो कर, कुछ होता है ना लोग फेक शो करते हैं अपने आप को, कुछ होते हैं जो ओरिजिनल है वही शो करते हैं. तो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो ना, आई वुड नेवर से कि आप फेक शो कर रहे हो. ठीक है. आप भी टाइम खुद अपने अंदर ऐसी ट्रेड्स डेवलप करो दैट आर गुड फॉर यू, दैट आर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत फखरिया कहेंगे कि जी हम तो सारा सारा दिन सोते हैं. ठीक है. हम तो काम ही नहीं करते, हम तो काम करना ही नहीं चाहते. अब इस तरह वाली चीज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और किसी को कह रहे हो और फिर आप बड़ा ब्लंटली कहते हो दैट आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट टेलिंग देम हु आई एम, तो वो तो गलत है. ठीक है. वो तो दैट इज समथिंग व्हिच इज neither required by the organization and which is not good for you either. ठीक हो गया. बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी नहीं कहूंगी आपको कि आप जाओ और आप जाकर कंप्लीटली गलत बातें करना शुरू कर दो. अगर आप में कोई कमी है, कोई वीकनेस है, तो उसको जान कर ये बात जाओ. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप वहां बैठे हैं तो आप परफेक्ट हैं, आपको एग्जैक्टली पता है आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको बिल्कुल पता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कैसे करना है. लेकिन जब आप वहां पे बैठे हुए हो तो आपने वो एटीट्यूड जरूर हो कि अच्छा अगर मुझे ये चीज नहीं आती है या मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको एडमिट करके उस पर काम करने के लिए तैयार हूँ. दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड एट एवरी पॉइंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ. बाकी जिन चीजों को मैं फेक नहीं करने को बोलूंगी वो आपका स्किल सेट है. अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना, सो बी ओपन विद द ऑर्गेनाइजेशन कि अच्छा ये सर्टेन चीज मुझे नहीं आती, यस आई एम विलिंग टू लर्न. लेकिन अगर नहीं आती है तो नहीं आती है, कोई बात नहीं है. आपने ये वाले ट्रेड्स नहीं दिखाने जाकर और ना ही ये बंदे में होने चाहिए कि हमारे पास विलिंगनेस नहीं है काम करने के लिए या हम काम को लेके सिरे से सीरियस ही नहीं है. हमारा काम सिर्फ ये है कि हम 9 to 5 एक जगह पर आकर बैठे और बस किसी तरीके से दिन गुजार दें. ये वाले ट्रेड्स ना होने चाहिए, ना दिखाने चाहिए. जो बाकी की चीजें हैं उसमें मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि जाके या आप अपनी सीवी में झूठ बोलें या फिर अपने इंटरव्यू में कुछ गलत बात करें. नहीं आता, आराम से बता दें, एक अच्छे तरीके से बता दें और अपनी विलिंगनेस शो कर दें दैट यस इफ आई एम गिवन दिस पर्टिकुलर रोल, इफ आई एम गिवन दिस XYZ रोल जिसमें ये ABC स्किल रिक्वायर्ड है, आई एम मोर देन विलिंग टू लर्न एंड आई एम विलिंग टू लर्न इट ऑन माय ओन. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दैट माइट नॉट सपोर्ट के आपको आपके साथ वो कोई मेंटर अटैच करें. कुछ अच्छी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो करती भी हैं मेंटर अटैच, कुछ नहीं करती हैं. So if you feel that it's one of those organizations that are not willing to attach mentor with you, so you take this responsibility on your own self कि अच्छा अगर ये चीज मुझे नहीं आती है तो मैं इसको सीख लूंगा and I will be fit for this role. Take the opportunity, जिस तरह मैंने बीच में भी कहा था कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उस अपॉर्चुनिटी को लो और साथ साथ चीजें सीखो. So yes, फेक नहीं करें लेकिन वो वाले ट्रेड्स भी नहीं होने चाहिए जिनको फेक करने की जरूरत पड़ रही हो वहां पे. लाइक अकॉर्डिंग टू जिस ऑर्गेनाइजेशन है हमें उसके मुताबिक अपने आप को मतलब डेवलप करना है या उसके मुताबिक. हाँ शायद वो तो जरूरी है. देखो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो आपके पास डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन है. इवन विद इन इंडस्ट्रीज अब डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है. बैंकिंग का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है,
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है आपकी, उसका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, टेलीकम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। फिर आपके पास विद इन टेलीकम्युनिकेशन आपके पास कुछ एमएनसीज हैं, कुछ आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ हैं जो अभी मिडल में है कहीं, ना वो कम्प्लीटली अब गवर्नमेंट रही है, ना वो कम्प्लीटली प्राइवेट रही है। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। इनके ड्रेस कोड डिफरेंट होंगे, इनका कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट होगा, इनका वर्क एथिक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। सो ये सब चीजें जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आप अपने आप को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि आप अपने आप को उसके हिसाब से मोल्ड कर सको। अपने वर्क एथिक्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन करने को कहती नहीं है अनलेस इट्स एन एक्सट्रीमली बैड प्लेस, ठीक है। अपने वर्क एथिक्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो आप, लेकिन जो आपकी बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो होनी चाहिए। उन पे ना ही आप फेक करोगे, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। जिन चीजों का मैंने आपको मेंशन किया है ना पहले भी, कि आपका कैन डू एटीट्यूड है कि नहीं है, आपको टाइम मैनेज करने की वो जरूरत है कि नहीं है, या कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना आता है कि नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये चीजें तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है हर ऑर्गेनाइजेशन में, इनके बगैर गुजारा नहीं होता। सो नहीं है तो आप सीखना शुरू कर दो, अगर है तो वेल एंड गुड। और बाकी हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहां जाके आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है थोड़ा बहुत। बट मैम एक बंदा 25-26 साल से अपने आप को मतलब एक अपने साथ रह रहा है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए उसको अपने अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। तो वो सर्टेन चेंज मतलब कैसे अपने अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। अच्छा, इसके एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब तक यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, हमारा कोई ऐसा स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट कोई ड्रेस कोड नहीं था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब मैं एमबीए ही कर रही थी, तो मैं साथ में एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अगेन मैं तो मार्केट में मुझे जाना होता था, मुझे सर्विस करने होते थे, इंटरव्यूज करने होते थे। आई डिडंट हैव टाइम कि मैं प्रॉपर ड्रेसिंग करके हर जगह जाऊँ। हम लोग जीन्स शर्ट्स में भी चले जाते थे, देयर वाज नो हार्म इन दैट, क्योंकि वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। फिर मेरी जो फर्स्ट प्रॉपर जॉब थी, वहां पे भी कोई ड्रेस कोड नहीं था। सो आई स्टिल रिमेम्बर के कोई नहीं पूछता था कि मैं क्या पहन के आई हूँ, क्या पहन के नहीं हूँ, अपनी मर्जी से जैसा दिल करता था तैयार होकर चले जाते थे। बट व्हेन आई शिफ्टेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे हमारा जो ड्रेस कोड है, इट्स वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। सो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं मुसलसल जो है ये कहूँ कि मैंने पिछले 6-7 साल से कभी कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, तो मैं अब क्यों करूँ। और ऑन दी अदर हैंड व्हाट आई कैन डू इज कि मैं जो ड्रेस कोड है, जो उनके कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको सिंपली फॉलो करूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बचपन में यूनिफॉर्म पहनते थे, अब एक ड्रेस कोड है जिसको फॉलो करना है, एक तरीके से हमने ऑफिस आना है। बाकी जो मेरा काम करने का तरीका है वो तो वही है। मेरी क्रिएटिविटी में मेरे काम में कोई मुझे नहीं तंग कर रहा, ठीक है। मुझे एक सपोर्टिव टीम मिली हुई है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, दैट्स द मेन थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है। लेकिन जो आप बाकी की छोटी मोटी चीजें, उनमें अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे तो बहुत जरूरी है। बाकी भी शाहरुख, आई फील बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी हैबिट्स जो है वो एक सर्टेन पॉइंट तक बन जाती हैं। आई फील कि इंसान जो है वो मिट्टी का बना होता है, ठीक है। और वो इसीलिए मिट्टी का बना है ताकि वो जिस जगह पे भी जा रहा है वो सांचे में ढल जाए। और हम सब में एबिलिटी होती है, अगर हम अपने ऊपर से ये फोर्स्ड रिजिडिटी हटा दें, ठीक है, तो वी आर ऑल वेरी फ्लेक्सिबल इन लर्निंग न्यू थिंग्स, इन गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, इन एडजस्टिंग आवरसेल्फ इन न्यू प्लेसेस, ठीक है। सो अगर आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है इससे रिलेटेड जो आप मेंशन करना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई बात चल रही है। हाँ, मेरा एक्चुअली जो बात ही है ना सारी नेचर वाइज, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है, आपने बिहेवियर में बोला, आप देखते हैं कि आपने पहले बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के मुताबिक इसको हैंडल करें। तो जब अगर आपके सुपरवाइजर या आपके मैनेजर का बिहेवियर आपके साथ यूजिंग है वो ठीक नहीं है, तो उस लिए फिर आप क्या कर सकते हैं? अच्छा शाहरुख, थोड़ी सी इसमें मैं क्लैरिटी दे दूं आपको कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो ना, ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। हर किसी का ना सिखाने का डिफरेंट तरीका होता है। इवन जब आप यूनिवर्सिटी में होगा, आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत ही प्यार से सिखा रहे होते हैं, आपके हर सवाल का जवाब बड़े प्यार से देंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ टीचर्स होते हैं जो गुस्से से सिखाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके जो सीनियर है, अगर वो आप पे थोड़ा बहुत डांट भी रहा है, ठीक है, तो वो डांट की हद क्या है,
क्या वो बेरेबल है कि नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो आपके भले के लिए है कि नहीं है। ये नहीं कि घर का गुस्सा था तो आप पर आकर उतार दिया। अगर उस तरह की कोई सिचुएशन है तो आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू टेक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ग्रीवेंस पॉलिसी होती है, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट। आपने देखना है कि आप कहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, बट बिफोर यू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग यू हैव टू सी कि आपके सीनियर का बिहेवियर क्यों है ऐसा, और दूसरी बात ये कि उसके पीछे पर्पस क्या है। अगर तो पर्पस आपको सिखाना है, आपको वो छोटों की तरह ट्रीट करके आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अच्छा ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, चीज दोबारा करो, देयर आर लॉट ऑफ बॉसेस जो आपको एक काम 6-6 7-7 दफा करने को बोलेंगे, ठीक है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। वो हो सकता है वो परफेक्शनिस्ट है, वो आपको भी चाह रहा है कि आप में भी ट्रेड डेवलप हो, आप भी टाइम परफेक्शनिस्ट बनो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है या उनका जो तरीका है वो आपके साथ अब्यूजिव है, वो कहीं और के गुस्से आपके ऊपर उतार रहे हैं और उसका वर्क से आपके काम से कतई कोई ताल्लुक नहीं है, देन आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू गो ऑन विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन। ईदर फाइंड अ न्यू जॉब या फिर आप अपनी टीम शिफ्ट कर लो विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। खड्डे नहीं डालने, ठीक है, ये मैं हमेशा कहूंगी। स्पेशली इस्लामाबाद की इंडस्ट्री जो एक पूरा एक है ना, का सेक्टर बहुत छोटा सा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है, लोग यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहे होते हैं, वर्ड स्प्रेड्स लाइक एनीथिंग, ठीक है। सो आपने अपना बिहेवियर अपने ऊपर आपने हमेशा फोकस रखना है, जहां तक आप मैनेज कर सकते हो ठीक है, अगर नहीं हो रहा यू जस्ट यू नो आपके कोई और रास्ता देख लो, कोई और चीज देख लो, बट आई वुड नेवर सजेस्ट यू कि आप जो हो ना ही अब्यूज लो और ना ही इस तरह की चीज आपने रेसिप्रोकेट करनी है। आपने सिचुएशन को जरूर जज कर लो बिफोर यू जंप टू कंक्लूजन्स। देख लो कि जो चीज हो रही है वो हो क्यों रही है, उसके बैक पे पर्पस क्या है, ठीक है। Okay, thanks so much. You're welcome. Any other question that you have? थैंक यू सो मच मैम, You're welcome. You're welcome. काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, काफी डीपली आपने एक्सप्लेन किया है, वी आर वेरी थैंकफुल। Problem at all. बाकी हम सेशन एंड करते हैं, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। So I think questions हो चुके हैं. Now we don't have anyone else. ठीक है, चलिए फिर सेशन क्लोज कर लेते हैं. Thank you so much again for inviting me. It was a great experience. जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ बात करने का हमेशा बहुत मजा आता है. तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर. आप लोग जहाँ भी जाएं अच्छे से काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, और जस्ट बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू डू. ठीक है, जहाँ पे भी जाएं ऑनेस्टी के साथ काम करें एंड यू विल डेफिनेटली प्रोग्रेस. इसके अलावा कभी कोई सवाल हो, यू कैन रीच मी आउट ऑन माय लिंक्डइन. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर क्वेश्चंस. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर मेंटोरिंग. सही हो गया? चलें रिमशा, फिर हम थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.